गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम संजू सैनी है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सक्षम रोजगार सोसाइटी में। सक्षम रोजगार सोसाइटी जैसे कि आपको अकाउंट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है और लास्ट फोर्थ मतलब थर्ड क्लास से हम टेली की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हमने टेली के बेसिक टर्म्स को पहले देखा था कि कैसे आप कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप लेजर्स क्रिएट करते हैं, और फिर सेकंड क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा था और लास्ट में हमने सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 क्लासेस भी ली थी। आज जो हमारी क्लास है वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर है। तो आप ये देखेंगे कि असेट्स क्या होते हैं। मेरे को लगता है कि जो हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आज आपको न्यू टर्म पता चलेगा असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। तो आज की जो क्लास है वो विक्की गौतम सर ले रहे हैं। तो और जो आज हमारी लीडिंग पर्सन है वो दीप्ति चावला मैम है, तो इनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। It is privilege to introduce Miss Dipti Chawla. She is an education professional with the Master of Philosophy (MPhil) focused in behavioral science education from CCSU Meerut. She is an emotional, intelligent trainer and coach. She has 20 years of rich and in-depth and extensive experience in teaching and mentoring the youth. She exhibit excellent communication in interpersonal problem solving, leadership, and team building skills. She is dedicated and committed to harnessing 21st century skills in today's youth. She has won international awards for young people IAYP. Currently, Ms. Dipti is associated with Kothari International School, Noida at HOD Social Science Department and actively head. Now I am going to introduce our resource person. Mr. Vicky Gautam is a commerce graduate with a BCom honors degree from Motilal Nehru College, University of Delhi. Alongside his graduation, he completed an internship at VGHSR, an associate LLP, a chartered accountancy firm, where he later worked as an auditor. His professional journey includes work as an accountant at Samsung, then handling financial reporting in the financial department of an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kesel India, a Germany-based organization. Beyond his corporate experience, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. Throughout his journey, he has been mentored and guided by Ms. Jyotika Kalra, the president of Saksham Rozgar Society. Their association dates back to his school days in 6th class, and she has continuously supported and motivated him in both personal and professional life. Currently, Vicky is pursuing a law degree with the goal of becoming a lawyer, further expanding his expertise in finance, auditing, and legal affairs. Over to you, Vicky. Thank you so much, Sanju ji, for the introduction. And first of all, thank you so much, Saksham Rozgar Society, for giving me this opportunity to take a class. And आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आप सभी का वंस अगेन मैं सक्षम रोजगार सोसाइटी में स्वागत करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास अकाउंट्स ट्रेनिंग की जो चल रही है उसके अंदर हमने काफी चीजें आगे तक पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्म्स के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में, कहीं ना कहीं टैली में कैसे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में हमने काफी सारी क्लासेस ले चुके हैं। और कई बार हमने इतनी बार एंट्रीज कर लिए तो हमें काफी ज्यादा एंट्रीज का भी सारा कुछ कॉन्सेप्ट हमें आज क्लियर हो चुका है। तो आज जैसा आप सभी जानते हैं जो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज विद असाइनमेंट। तो जो आज हमारी क्या है 9th क्लास है। तो 9th क्लास में क्या है हमारी जो एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में जानेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं पिछली वाली क्लास में हमारा 1-2 एंट्री का पेंडिंग रह गया था, उसको हम इस क्लास के एंड में कवर करेंगे। पहले जो आज की क्लास है पहले उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं एसेट एंड लायबिलिटीज विद असाइनमेंट, ठीक है ना। तो आप सभी डिस्प्ले पे देख सकते हैं हमारी पीपीटी का फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएनएल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट और एसेट एंड लायबिलिटी दोनों ही हमें आज पढ़ना है। एसेट एंड लायबिलिटी का हमारा हेड है बट हम आज दोनों ही पढ़ेंगे। पहले पीएनएल को रिवाइज करेंगे, फिर हम एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर भी जाएंगे, और फिर दोनों से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, स्पेशली क्वेश्चन बनाया हुआ है आपके लिए। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी टैली के अंदर।
और आज उस टैली के अंदर हम पीएनएल अकाउंट को मैच भी कर देंगे और बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट कर देंगे। आज की क्लास में हमें पीएनएल सीखना है, बैलेंस शीट भी सीखना है, और उसको टैली में उस एंट्रीज को पुट करना है और हमारी बैलेंस शीट मैच करके हमको दिखाना है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने नाम से ही है। तो प्रॉफिट और लॉस आप सभी बचपन से जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है। जैसा आप सभी जानते हैं बिल्कुल सेम इसका वही मीनिंग होता है। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और उसको 20 रुपए में बेच दिया, उसको आप बोलते हो कि 10 रुपए का मुझे मुनाफा हो गया है। उस मुनाफे को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। तो सेम वही बिजनेस का भी वही सिस्टम होता है। कितने का आपने परचेज किया और कितने में आपने उसको सेल किया, जो आप एक्सेस अमाउंट ऐड करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कभी कम पैसों में बिकता है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आप प्रोडक्ट जो परचेज करेंगे उसकी ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी। कई बार क्या होता है उसमें मार्केट की डिमांड कम होती है उस प्रोडक्ट की। जब आप ले रहे होते हो तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, बट जब आप बेच रहे होते हो तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है उस परचेज की जो उस कॉस्ट की जो वैल्यू होती है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है आप 10 रुपए के आइटम को 8 रुपए में माल बेच देते हो, उससे आपको 2 रुपए का लॉस हो जाता है। दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पढ़ते हैं हम बुक की लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द कंपनीज रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। तो यूजुअली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो 1 साल का बनता है, जिसके अंदर हम इनकम को दिखाते हैं कि कितना हमारे पास इनकम आई है। इनकम मींस कि आपने कितने का सेल किया है या कोई और इनकम आप अर्न करते हो बिजनेस से, वो इनकम में कवर हो जाती है, ठीक है ना। और एक्सपेंस तो आप सभी जानते हैं, जैसे हम बिजनेस जब भी चलाते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने परचेज करा वो आइटम, वो आपके लिए एक्सपेंस है। आपने अपनी दुकान का रेंट दिया, वो आपके लिए एक्सपेंस है। आपने सामान प्रोडक्ट मंगाने के लिए अपने कंपनी के अंदर आपने कार्टेज दी, दैट इज कॉल्ड फ्रेट, वो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है ना। आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का सामान खरीदा बुक्स को मेंटेन करने के लिए, वो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है ना। पेपर्स खरीदे, पेन खरीदी आपने, आपका पूरा स्टेशनरी का सामान, दैट ऑल आर एक्सपेंसेस ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंस तो होते ही है, ठीक है ना। तो वो हो गया एक्सपेंस। द गोल इज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल इनकम। तो गोल क्या होता है प्रॉफिट और लॉस निकालने का, जिसमें हम क्या करते हैं इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। जितने का हमने इनकम अर्न किया है पूरे साल में, उसमें से हम माइनस कर देते हैं कितने का हमने खर्चा किया उसके अगेंस्ट में, उसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा लेस अमाउंट जो बच जाएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर वो माल मतलब जितने का हमने इस प्रोडक्ट बेचा है उससे ज्यादा का हमने खर्चा कर दिया पूरे साल में या पूरे मंथ में, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो जो अगर हमने कम दाम में बेचा तो हो जाएगा हमें क्या घाटा, तो हो जाएगा लॉस। और अगर हम अगर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा मार्जिन में सेल कर रहे हैं मार्केट में तो हमें होगा प्रॉफिट, और कम में बेचेंगे तो हमें हो जाएगा लॉस। दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आगे चलते की पॉइंट्स के बारे में। तो की पॉइंट्स के अगर हम बारे में बात करें, दैट इज इनकम। व्हाट इज इनकम? इनकम इज द मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जैसा भी आपको मैंने बताया कि इनकम में क्या होता है आपकी सेल्स कवर होती है, कि आपने गुड्स कितने का तो मार्केट में जाके बेचा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। और सर्विसेज की बात करें उस तरीके से आपका सेम है कि आपका बिजनेस जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट ही बेच रहा हो। जैसे हमारा मन्नत फर्नीचर था, तो मन्नत फर्नीचर ये थोड़ी कि मन्नत फर्नीचर सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करता है। मान लो चेयर परचेज करी और चेयर को बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कोई कोई कंपनी बोलती है कि हम आपको रॉ मटेरियल देंगे और आप हमारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बना के हमको उस चीज की सर्विस दे दो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट की एक सर्विस ली हम लोगों से कि आप हमसे रॉ मटेरियल लो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक चेयर बना के हमें दे दो। तो हमने गुड्स तो उसमें बेचा ही नहीं, हमने उसको एक सर्विस दी। इसमें हमने क्या करा, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के उस बंदे को दिया, हमने उसको एक सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है ना। उसी तरह एग्जांपल से एक और चीज ले सकते हैं सर्विस की केस में। जैसे एक डबल बेड है, तो डबल बेड हमने सेल तो कर दिया लेकिन पार्टी ने बोला कि हमें डबल बेड हमारे घर में लगा के जाओ। तो हमने बोला डबल बेड लगाने का हमारे पास 2 लोग और जाएंगे उस सर्विस को देने के लिए, जिसके लिए हम पर पर्सन आपसे 2000 रुपीज चार्ज करेंगे, तो हो गए 4000 रुपए। तो उस डबल बेड को उसके घर में सेट करने का जो हमने सर्विस दी उस अपने बायर को, दैट इज कॉल्ड सर्विस इनकम, ठीक है ना। जो डबल बेड से पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। और जो 4000 रुपये जो हमने प्रोडक्ट जो हमने इम्प्लॉय को बेचा था सर्विस देने के लिए, डबल बेड को सेट करने के लिए, दैट इज इनकम फ्रॉम सर्विस। तो इनकम फ्रॉम गुड्स भी समझ आ गया आपको, इनकम फ्रॉम सर्विस भी समझ आ गया आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस इज अ मनी स्पेंट ऑन रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए जो हम खर्चे करते हैं, जो भी मैंने बताया आपको, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस।
इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो पैसा लग रहा है दैट इज कॉल्ड परचेज एक्सपेंस, वो आपका एक्सपेंस है। सर्विस का एक्सपेंस, सर्विस देने जाओगे तो आप जरूर जो दो एम्प्लॉय को आपने सर्विस के लिए भेजा है, आप उनको कहीं ना कहीं वेजेस दे रहे होगे या सैलरी दे रहे होगे, वो भी तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो वो भी आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना। रेंट जैसे भी आपको मैंने बताया रेंट एक्सपेंस दैट इज, और सैलरी अभी आपको मिला सैलरी एक्सपेंस। ये हो गए आपके सारे एक्सपेंडिचर्स। बात करते हैं नेक्स्ट कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस। जो टोटल इनकम आपने जनरेट करी सेल करके, सेल ऑफ गुड्स और सेल करी करके, उसका जो भी डिफरेंस होता है एक्सपेंस और इनकम का, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है ना। जैसा अभी मैंने आपको पिछली भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा आइटम ज्यादा मार्जिन में सेल करोगे तो ऑब्वियसली बात आपको प्रॉफिट होगा, ज्यादा एक्सपेंस करोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है ना। बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ पीएनएल। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस निकाल दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन अगर फिगर माइनस में आ गई तो आपका नेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इनकम, अब एग्जांपल के लिए ले लो, टोटल इनकम मान लो आपकी 500 रुपए की थी और टोटल एक्सपेंस आपका 400 रुपए का था, 500 में से 400 रुपए गया तो 100 रुपए बचे, तो 100 रुपए आपका नेट प्रॉफिट बन गया। लेकिन उल्टा हो गया, मान लो वैसा वर्षा हो गया कि टोटल इनकम आपकी 400 रुपए की थी बट आपका जो एक्सपेंस था वो 500 रुपए का हो गया, दैट इसकी आपने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया और आपका रेवेन्यू कम था, तो उस केस में क्या होगा, माइनस में फिगर आ जाएगी, ठीक है ना। जब माइनस फिगर आएगी दैट इज लॉस। आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मेरी 4 क्लास ऑलरेडी इन चीजों में हो चुकी है, इन सबको मैं आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को फास्ट लगे तो आप मुझे बता देना बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इनकम में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, सेल्स की इनकम, हमने सेल करा वो हमारी रेवेन्यू है, वो हमारी इनकम है। बैंक इंटरेस्ट, तो हमारा बैंक है, हमारे बैंक से, अब एक एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास आपका मन्नत फर्नीचर था, आपके पास ज्यादा पैसा था आपके अकाउंट में, तो आपने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर दूं अपने मन्नत फर्नीचर के नाम से। तो आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपए, तो आपने बोला कि 2 लाख रुपए की एफडीआर करा लेता हूँ। एफडीआर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। कुछ ऐसा अमाउंट, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप बैंक में जमा कराते हो, उसके बाद कुछ समय बाद आपको उस पर ब्याज मिलता है। जो सेविंग इंटरेस्ट, जो सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं अच्छा इंटरेस्ट आपको एफडीआर पे मिलता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, एफडी कराते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, कुछ पैसे को डिपॉजिट करके बैंक के अंदर, तो उस पर क्या होता है, ब्याज मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी हमारे लिए क्या, हमारे लिए बिजनेस की इनकम है, बट वो डायरेक्ट इनकम नहीं है, जैसा मैंने पिछले क्या था, डायरेक्ट इनकम नहीं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस मन्नत फर्नीचर है, गुड्स को सेल करने का बिजनेस है, सर्विस देने का बिजनेस है, बैंक में इन्वेस्ट करने का हमारा बिजनेस नहीं है, इसीलिए वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया रेंटल इनकम, वही सेम केस, हमारे पास ज्यादा पैसे पड़े थे, हमने क्या करा, एक प्रीमिसेस परचेज करी और उसको हमने रेंट पे चढ़ा दिया, उससे हमें रेंट इनकम आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम सेम एज लाइक एफडीआर, जैसे आपने एफडीआर में इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्ट किया और इससे जो आपको ब्याज का पैसा आ रहा है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। लास्ट है सर्विस इनकम, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे दो आपके एम्प्लॉय गए वहां ने उन्होंने सर्विस दी कि आपके जो डबल बेड है, चेयर है, उसको सेट किया घर के अंदर, उसके जो चार्ज लगे, उसके बदले जो मुझे पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड सर्विस इनकम। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर में आप एग्जांपल दे सकते हैं, परचेज, हमने गुड्स परचेज करा वो हमारे लिए खर्चा है, तो जो परचेज करने का जो खर्चा है वो हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। दूसरा है रेंट, पहले हम रेंट रिसीव कर रहे थे तो हमारे लिए इनकम था, लेकिन अभी हम कम क्या कर रहे हैं, हम मन्नत फर्नीचर को हमने किराए पे ले रखा है, जो हमारी शॉप है, जो हमारी बिजनेस यूनिट है, सॉरी, जो हमारी बिजनेस यूनिट है उसको हमने किराए पे ले रखा, तो हमें कहीं ना कहीं उसका पैसा भी तो देना पड़ेगा हर महीने रेंट के रूप में, वो हमारे लिए खर्चा है। यह रेंट पेबल वाला रेंट, ठीक है ना। पिछला जो था वो रेंट रिसीवेबल था, इसलिए वो हमारे लिए इनकम थी, ये हमारे लिए खर्चा है। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड वेजेस, हम अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, जो हमारे दूसरे लेबर होंगे उनको वेजेस देंगे, ठीक है ना। तो एक को सैलरी दे रहे हैं, एक को वेजेस दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए खर्चा है। सो फटाफट कोई मुझे बता दो सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है, फटाफट बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर दिलीप आपकी, सैलरी क्या है, पे मंथली मिलती है आती है, वेजेस और में। वेजेस डे बाय डे मिलती है। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सैलरी म्यूट कर लो जिसका भी बज रहा है, हाँ। सैलरी क्या होता है, इज अ फिक्स अमाउंट जो हम अपनी एम्प्लॉय को पे करते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है ना। कि भाई अब आप एडमिन वाले बंदे हो, आप ऑफिस वाले बंदे हो, आपकी फिक्स रेमुनरेशन है, आपकी फिक्स सैलरी है, तो आपने सैलरी पे कर दी। लेकिन वेज में क्या होता है, जो वेजेस मिलते हैं वो डिपेंड करता है आउटपुट कितना दे रहे हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच आउटपुट यू गेन। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, आपने 10 शेयर बनाई,
तो हर शेयर पे आपका 100 रुपए का कमीशन बनता है, तो आपने 10 शेयर बनाए तो आपको 1000 रुपए का कमीशन बन गया, ठीक है ना। लेकिन सैलरी में क्या होता है, मेरी सैलरी 20,000 फिक्स है, तो मैं चाहे 10 शेयर बनाऊं चाहे 20 शेयर बनाऊं, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, 20,000 रुपए। तो दिस नॉट सैलरी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, बट योर वेजेस इज डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट। और वेजेस जो होता है नॉर्मली हम लेबरों को देते हैं, जो भत्ते के रूप में जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। लेकिन वही सैलरी की बात करें तो हमारा फिक्स एम्प्लॉय है। नॉर्मली क्या होता है, जो ऑफिस में स्टाफ बैठा होता है, जैसे अकाउंटेंट हो गए, तो आप सभी लोग बड़े बड़े अकाउंटेंट बनोगे फ्यूचर में, तो आप सभी को सैलरी मिलेगी, वेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। जब आप मन्नत फर्नीचर चला रहे हो, आप एक फर्नीचर का बिजनेस चला रहे हो, तो आप जरूर बिजली तो यूज करोगे ही, और जब बिजली यूज करोगे तो क्या होगा, कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसका भी जो खर्चा होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फटाफट बता दो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस, फटाफट कौन बताएगा, फटाफट बता दो। वेरिएबल। वेरिएबल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Electricity is a variable expense. Why? Because of it is depending on the output. आप जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे आपकी बिजली उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक वेरिएबल खर्चा है, फिक्स खर्चा नहीं है। लोन इंटरेस्ट, आपने बिजनेस चलाया, आपने 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, बट आपको लगता है कि आपको कुछ और पैसों की जरूरत है आपके बिजनेस के अंदर, तो आपने क्या करा, लोन उठाया बैंक से, मार्केट से लोन उठाया। अब मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन उठाया, तो आपको उसमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा। जो ब्याज देना पड़ेगा दैट इज योर एक्सपेंस, वो लिए क्या है, आपके लिए एक्सपेंडिचर है। तो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी आपको वो एक्सपेंस देना ही पड़ेगा, अल्टीमेट देना ही पड़ेगा। जो भी रेट होता है 12% होता है, 13% होता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक टर्म्स एंड कंडीशन। वो आपके लिए क्या है, खर्चा है। बिजनेस चलाने के लिए जो आपने लोन लिया उस पर ब्याज दोगे, वो आपके लिए खर्चा है। लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो आप अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए खर्चा करते हो। फटाफट बता दो, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज अ वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंस, फटाफट। वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंस, वेरी नाइस। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजिंग डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी बढ़ रही है। सेल ज्यादा बढ़ रही है दैट इज मीन कि आप एडवर्टाइजिंग ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना, तो वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। वेरी नाइस। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। व्हाट इज बैलेंस शीट। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। अब बैलेंस शीट क्या होता है, अब बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट a specific point in time. It lists the company's asset, liabilities and owners equity. तो बैलेंस शीट क्या होता है, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताता है कि हमारा बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है या फिर एक्सपेंस ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन वही बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट बताता है हमारे हमारे जो मन्नत फर्नीचर, जो हमारा इंटरप्राइजेस है, उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में, ठीक है ना। एक स्टेबिलिटी बताता है मार्केट के अंदर कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या पोजीशन है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट का आप ऊपर देखते हो लिखा था, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। इसका मतलब होता है अब तक की बैलेंस शीट। वही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या लिखा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, 1 साल का होता है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है, एट अ स्पेसिफिक डेट ऑफ टाइम की होती है। मतलब जब मैं लिखूंगा 31 मार्च 2024, तो उसका मतलब ये होगा उससे पहले की जितनी भी, जब से स्टार्ट हुई कंपनी तब से लेके 31 मार्च 2025 तक में क्या मेरे कंपनी का स्टेटस है, वो मेरी बैलेंस शीट बताएगी। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक पीरियड का बताता है, सिर्फ 1 साल का बताता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। बात करते हैं इसके अंदर 3 चीजें आपको पता लगी, कंपनीज एसेट, लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्स, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए जो कंपनी को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए कंपनी एसेट की बात करें, फिक्स एसेट, आप फर्नीचर का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं मशीनरी लगेगी, ड्रिल मशीन लगेगी, कई सारे प्रोडक्ट्स लगेंगे, टूल्स लगेंगे, दैट इज ऑल आर एसेट्स। कि कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए वो जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी ने किसी से माल परचेज करा, कंपनी ने किसी से स्टॉक परचेज करा, तो कहीं ना कहीं जब कंपनी परचेज करती है तो उसके बदले कंपनी को पैसा भी देना होता है, ठीक है ना। तो वो बंदा क्या है जिसको देना है, वो क्रेडिटर है। और जब क्रेडिटर को पेमेंट देनी है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसको फ्यूचर में पैसा देना है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जैसे एग्जांपल पिछला भी आपने क्या लिया था, लोन आपने लिया था, जो आपने कंपनी को चलाने के लिए लोन लिया था 2 लाख रुपए का, 12 से 13% का ब्याज था जो हमें बैंक को पे करना था। जो 2 लाख का लोन लिया था वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है,
क्योंकि हमें फ्यूचर में उसको पेमेंट को पे करना है। बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो मालिक होता है। जैसे मन्नत फर्नीचर में हमारा मालिक कौन था? मिस्टर अमन। जो अमन था, तो अमन क्या है, अमन ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए कंपनी में, जिसने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी फ्रॉम हिज ओन फंड। उसने अपना खुद का फंड लगाया था, ठीक है ना, सोर्स ऑफ कैपिटल में देखा था आप लोगों ने क्लास में। तो जब उसने अपना खुद का पैसा लगाया था, तो कंपनी को कहीं ना कहीं बाद में उस अमन को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जो बिजनेस होता है और जो पर्सन होता है, दे बोथ आर सेपरेट। दे बोथ आर सेपरेट। बिजनेस अलग होता है और प्रोप्राइटर या मालिक वो अलग होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं, वो सेम पर्सन नहीं होते। ठीक है ना? तो हमेशा बिजनेस और उसका मालिक हमेशा दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना? तो इसलिए बैंक का अकाउंट मन्नत फर्नीचर का अलग बनता है। ठीक है ना? क्योंकि मन्नत फर्नीचर की लाइबिलिटी है अमन को पैसे देना है फ्यूचर में, क्योंकि 5 लाख रुपए उसने कैपिटल के रूप में लिया था मन्नत फर्नीचर ने। दैट इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। ठीक है? तो बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो फॉर बैलेंस शीट, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स का इक्विटी का मतलब क्या हो गया? जो ओनर्स की जो कैपिटल लगाई गई है वो, और प्लस जो कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं अमन का ही है, तो वो प्रॉफिट का पार्ट भी जो है वो अमन के ही पास जाएगा। तो ओनर्स कैपिटल इज, ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना? उसको निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे तो हमारी ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। और एसेट आप लोगों को बता ही दिया, जो कंपनी की एसेट होती है, जैसे सन्ड्री डेटर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे हमारे लिए क्या, इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे लिए एसेट है। कोई लाइबिलिटी की बात करें, लोन्स, ट्रेड पेबल, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए पेबल्स है ना, हमें फ्यूचर में से पे करना है, ये हमारे सब लाइबिलिटीज है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब की पॉइंट्स की बात करें, एसेट क्या होता है अभी हमने पढ़ा, व्हाट द कंपनी ओन्स, एग्जांपल बैंक बैलेंस। हाँ, जो हमारा बैंक है वो भी हमारे लिए एसेट ही है। बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है वो हमारे लिए एसेट है। फिक्स एसेट जो भी हमने पढ़ा, मशीनरी ले रहे कुछ भी ले रहे वो हमारे लिए एसेट है। लाइबिलिटी की बात करें, व्हाट द कंपनी ओन्स, जो कंपनी को देना है, दैट इज लोन्स, जो भी लोन लिया था हम लोगों ने, हमें देना है फ्यूचर में। पेबल्स, पेबल का मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमें से फ्यूचर में पे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओनर्स इक्विटी, द ओनर स्टेक इन द बिजनेस, जिस बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया वो, इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टेड एंड रिटेन प्रॉफिट, जैसा मैंने बताया था ना, जो कैपिटल 5 लाख की लगाई है वो, और प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वो भी उसी का पार्ट है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट जो अमन को तो मिलेगा लास्ट में, दोनों को मिला के जो होगा ओनर्स इक्विटी। अब बात करते हैं एसेट्स के एग्जांपल के बारे में। एसेट्स में क्या क्या आता है? बैंक, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज डेटर्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी हो जाएगा आपका, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा दैट इज WIP। तीसरा हमारा हो जाएगा फिनिश गुड्स। ये तीनों ही हमारे क्या है? इन्वेंट्री का पार्ट है। और लास्ट हमारे क्या होता है? फर्नीचर। जैसे हमारा तो फर्नीचर का बिजनेस है, तो हमारे लिए फर्नीचर फिक्स एसेट तो नहीं, हमारे लिए स्टॉक ही होगा। बट मान लो जो मशीनरी हो गई या कोई भी प्रोडक्ट और हम परचेज करते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? फिक्स एसेट बन जाएगा, जो हमारे लिए मशीन वशीन होगी। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन भी सोल्व कराना है और हमारे पास टाइम कम है। और वैसे भी मैं ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ आपको कहीं ना कहीं, इसलिए थोड़ा सा हम क्लास को फास्ट रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक क्वेश्चन भी सोल्व करना है। ठीक है ना? और ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं बाद में इसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं रहा। लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज में क्या होता है? लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है, जैसे हमने माल परचेज करा, स्टॉक परचेज करा, हमने तुरंत पेमेंट नहीं दी, हमने बोला बाद में पेमेंट देंगे। जो बाद में पेमेंट देंगे वो हमारे लिए लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी हमारी किताबों में। बाद में उसको हम क्या बोलते हैं? सन्डी क्रेडिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के देखो, इन्होंने देखा 20,000 रुपये क्रेडिट परचेज फॉर फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज करा उधारी में, तो 20,000 से हमारा सन्डी क्रेडिटर हमारे बैलेंस शीट में खड़ा हो जाएगा, जो हमें फ्यूचर में देना होगा। लोन फ्रॉम बैंक, एग्जाम्पल 25,000 रुपये दे रखा है, तो क्या है? हमने बैंक से लोन लिया है, वही वाला हो गया आपकी लाइबिलिटी। ओनर्स इक्विटी अभी आपको मैंने बताया, कैपिटल का अकाउंट, जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी अमन ने 5 लाख रुपए, वो वाला कैपिटल। और दूसरा नेट प्रॉफिट है, जो बिजनेस कमाएगा पैसा वो भी तो हमें अमन को देना ना लास्ट में, प्रॉफिट लास्ट में तो मालिक ही का ही होगा ना, तो वो गया नेट प्रॉफिट। थैंक यू सो मच। पीपीटी खत्म हो चुकी है हमारी। अब पीपीटी तक में कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों के लिए मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन रखा है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करेंगे, मजा आएगा करने में। तो अभी तक कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को अब तक जो जी पढ़ाया है? सर। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे? हम टैली में एंट्रीज करेंगे असाइनमेंट के साथ, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल वाला जो काम था वो खत्म हो चुका है।
अब हम करेंगे टैली में क्वेश्चन। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा नेट प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, और हमारी बैलेंस शीट मैच भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जब वो हमारे क्वेश्चन के साथ हमारी टैली मैच हो जाएगी, दैट इज कि हमने एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। जो कल हमने क्वेश्चन करा था विच इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री, आप सभी देख रहे हो सिंगल एंट्री पे क्वेश्चन कर रहे थे, हम सीधा एक्सपेंस को पेमेंट कर रहे थे बैंक से, ठीक है ना। वो था हम एक मन्नत फर्नीचर वाले का एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है कि खर्चा पहले बुक कर देंगे और बाद में उसकी पेमेंट करेंगे, जैसा नॉर्मली बिजनेस में होता है। अब बिजली का खर्चा आपके पास आया, तुरंत तो आप पे नहीं करोगे, बिजली का खर्चा आप कुछ दिन बाद ही तो पे करोगे ना, ठीक है ना। मान लो 10 तारीख का बिजली का बिल आया आपका, टाटा पावर डीडीएल का, तो 10 तारीख को आप बुक्स में खर्चा बुक कर दोगे, और ड्यू डेट मान लो 20 तारीख थी, तो 20 तारीख से पहले मान लो 18 को आपने पेमेंट करी, तो फिर हम 18 को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। आज हम उस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे जैसे मार्केट के अंदर अकाउंटिंग होती है, जिस तरीके से बिजनेस चलता है। तो आज जो अकाउंटिंग सीखोगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बहुत ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, किस तरीके से बैलेंस शीट बना रहा हूँ, किस तरीके से पीएनएल बन रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आते हैं टैली के अंदर। सेम वही हमारे पास इंटरफेस आ चुका है जैसे पहले आ रहा था, तो हम एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक कर चुके हैं और हम एंटर कर चुके हैं। आप सभी को पता है हमने एक डाटा पहले से बना रखा था मन्नत फर्नीचर का, जो था हमारा एसआरएस टेली डाटा के अंदर, ठीक है ना, ये डाटा। लेकिन इसमें हमने पहले से कुछ एंट्रीज कर रखी हैं। अगर हम उस एंट्री को कंसीडर करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ क्लास नंबर 5 के लिए, ठीक है ना। नया डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, नई बैलेंस शीट बना रहा हूँ, नई एंट्री कर रहा हूँ, सब कुछ नया कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। ध्यान से फोकस करना, हम नया डाटा बना रहे हैं। नया डाटा बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को लोकेशन लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपको अपने नोटपैड पे लिखना है लिख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है एक नया फोल्डर वही बन जाता है। देखो मैं अभी अभी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। टैली टाटा फॉर क्लास 5, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया क्योंकि मैं डाटा यहीं पे सेव करूंगा। और दूसरा ऑप्शन होता है राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू पे जाओ, और न्यू के बाद यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग फोल्डर आ रहा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले दिख रहा है फोल्डर दिख रहा है सबसे ऊपर फोल्डर, तो उस पर एंटर कर दोगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन बता दिए मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एन, दूसरा राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेली डाटा फॉर क्लास 5 पे एंटर करोगे, फिर पाथ सेलेक्ट करोगे जैसे मैंने पहले बताया था, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, फिर से टैली में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे क्रिएट कंपनी, और हम बैक स्पेस करके क्या डालेंगे अपना पाथ, जो अपने रास्ता सेलेक्ट किया रूट, रूट को एंटर करेंगे, एंटर एंटर। तो अब हमारा जो भी डाटा बनेगा टैली में वो डाटा वहीं सेव हो जाएगा क्लास 5 वाले डाटा में, ठीक है ना। कंपनी का नाम मन्नत फर्नीचर, एड्रेस डाल सकते हो आप, आज डाल देते हैं हम दिल्ली वाला एड्रेस, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली, पिन कोड डाल दो 110015, ठीक है। स्टेट क्या है दिल्ली। फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि आप सबको बनाना टैली में कंपनी तो आता ही है, मैंने सिखा चुका पहले ही। पिन कोड 110015, एंटर एंटर। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, बुक्स भी हमारी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगी, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे हमें जीएसटी नो करना है क्योंकि जीएसटी की क्लास हम नहीं ले रहे हैं, जीएसटी की क्लास आपके दूसरे टीचर्स लेंगे। अभी मैंने नो कर दिया, इनेबल कर दिया। ये कंपनी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, तो उससे पहले हम क्वेश्चन खोल लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है ये रहा, असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। राइट क्लिक, ओपन विद वर्ड। तो आप सब देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, एक बार मुझे बता दो फटाफट। Yes, sir. हो रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन विजिबल हो रहा है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो चलो, अब हाँ एक बात और बता दूं, हमारा जो टैली है वो हमारा एजुकेशन मोड पे, ठीक है ना। तो एजुकेशन मोड पे क्या होता है कि सारी डेट सेलेक्ट नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था। मंथ की पहली डेट, मंथ की दूसरी डेट और मंथ की लास्ट डेट, बस हम एक मंथ में 3 डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन मोड के अंदर टैली के अंदर। तो इसीलिए जो भी मैंने एंट्री बनाई है वो 1 तारीख की है, 2 तारीख की है, और मंथ के लास्ट टाइम पे है, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में काम कर रहे हैं, तो 1 तारीख की एंट्री डालूंगा, 2 तारीख की डालूंगा और 30 अप्रैल की एंट्री डालूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन मोड, ठीक है ना। लेट्स बिगिन। एंट्री स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो
सबसे पहले बोल रहा है कि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है 5 लाख रुपए, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, डाल देते हैं मिस्टर अमन, जो हमारा अमन था, मन्नत फर्नीचर का ओनर, प्रोपराइटर, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में आप सामने देख रहे होंगे बैंक डिटेल्स गिवन एट द एंड ऑफ द शीट। कह रहा है कि बैंक डिटेल जो है वो शीट के एंड में है। चलो फिर एंड पे चलते हैं। ये रहा, तो बैंक डिटेल आप सबके सामने मिल गई। ये बैंक की डिटेल है जो हमें अपने टैली में खोलना है। तो लेट्स बिगिन टू क्रिएट अ लेजर। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल गेटवे ऑफ टैली पे आना है। सबसे पहला ऑप्शन को दिख रहा है क्रिएट, क्रिएट पे आपको एंटर करना है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, लेजर। सेकंड वाला क्या बनाना है, लेजर। लेजर पे एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक का नाम। बैंक का नाम क्या था उसके अंदर, पंजाब नेशनल बैंक। तो लिख देंगे आप पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद अंडर बैंक, बैंक किसके अंदर आएगा, ऑब्वियसली बैंक बैंक के अंदर अकाउंट। ही आएगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। आप बोल रहे हैं अकाउंट नंबर बताओ, तो मैं आप लोग के लिए डमी के लिए अकाउंट नंबर भी लेके आया हूँ इवन। तो अकाउंट नंबर को आप कभी कॉपी कर लो, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। अकाउंट नंबर कॉपी हो गया, फिर आप एंटर करेंगे आईएफएससी कोड। आप सभी को पता है आईएफएससी कोड क्या होता है, तो आईएफएससी कोड होता है, उसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी फिर से पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर। स्विफ्ट कोड आप सभी को मैंने बताया था कि स्विफ्ट कोड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है। जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर देश में माल बेचते हैं, तो वहां से जब पैसा आता है ना, वो स्विफ्ट कोड के ही थ्रू आता है। ठीक, ठीक है ना, तो स्विफ्ट कोड वहां पे आएगा। बैंक नेम आप हटा दो उसको, एंटर एंटर एंटर, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। एड्रेस दिल्ली रहने दो। पिन कोड, पिन कोड दे रखा है इसमें, ये रहा 110015 कीर्ति नगर। तो ब्रांच भी जो है कीर्ति नगर की है, ठीक है ना, तो डाल देते हैं कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 110015, ठीक है। फिर दिल्ली, पिन कोड 110015। एंटर ओपनिंग बैलेंस। अभी हमारा अकाउंट जस्ट ओपन हुआ है, तो हमारे पास ओपनिंग का कुछ भी पैसा नहीं आ रहा, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता, मतलब बैंक अकाउंट मेरा पहले से चल रहा होता, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा मेरे अकाउंट के क्लोजिंग में होता, जो मेरा 1 तारीख में ओपनिंग मिल जाता। तो अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, 0 रुपए है, तो सीधा हम ओपनिंग बैलेंस में 0 रुपए डाल के एंटर करके लेजर क्रिएट कर देंगे। तो हमारा बैंक का लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। एस्केप करके बैक करेंगे, बैक 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 बैक। लेट्स बिगिन, हमारा बैंक बन चुका है। फिर से हम जाएंगे टॉप पे। तो 1 अप्रैल को आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब कैपिटल का पैसा आ रहा है, जो मिस्टर अमन कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो पहली एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन बैंक तो हमने बना दिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट मिस्टर अमन का बनाना अभी बाकी है। फिर से लेजर में जाएंगे, फिर से क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट लेजर अकाउंट। अब क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट ऑन मिस्टर अमन, एंटर एंटर एंटर। अब बताओ कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, किस लाइट में आएगा, कैपिटल टैली। कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। तो हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नेम एड्रेस आप डाल सकते हो, जो भी एड्रेस होगा अमन का वो डाल देंगे। एंटर एंटर, पेन नंबर ओपनिंग वाले सभी कुछ है नहीं, एंटर और एंटर। फिर से अब देखते हैं और कौन सा लेजर बनाना है। पहले सारे लेजर बना लेते हैं, फिर एंट्री करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आता है हमारे होके बैंक अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा विजय। विजय हमारा क्या है, संडी क्रिएटर है। क्यों, क्योंकि उससे हम परचेज करके हमें पैसा देना है। तो हम फटाफट एक अकाउंट क्रिएट करते हैं विजय का भी, ठीक है ना। तो विजय हमारा क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि उससे हमने माल परचेज किया था और हमने पैसा नहीं दिया होगा, हमने पैसा बाद में दिया होगा, तो हमारे लिए वो क्रेडिटर के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा, विजय का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिस्टर विजय, विजय क्या बनेगा, सन्ड्री, किसमें बनेगा विजय, क्रेडिट। Syndicator. सिंडिकेट। सिंडिकेट। सिंडिकेट हो गया, यस। अब देखो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर अपने हम पार्टी को देते हैं कि हम इस पार्टी को इतने दिनों में पैसा पे करेंगे, दैट इज ड्यू पीरियड, ठीक है ना। जैसे मैंने किसी को माल बेचा, तो मैं उस पार्टी को बोलूंगा कि भाई 30 दिनों में पेमेंट कर देना, 30 दिनों से क्रेडिट में आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो वो होता है ड्यू देना, कि मैं किसी बंदे को कितने दिनों में पेमेंट करूंगा मैक्सिमम। और वही सेम होता है जब मैं माल परचेज भी करता हूँ। जैसे मैंने किसी से माल परचेज करा, तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि उसको मेरे को इतने दिनों में पे करना है, जितना वो मुझे क्रेडिट अलाउ कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि जो विजय है मुझे 30 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है, तो 30 डेज डाल दिया मैंने। विजय का आप एड्रेस डाल सकते हो जहां विजय रहता है। अभी हम एड्रेस नहीं डाल रहे, हम सीधा लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। विजय का हमने लेजर बना दिया,
परचेज में तो हम परचेज अकाउंट में तो स्टॉक डालना होगा, वो हम स्टॉक इकट्ठे डाल देंगे। उसके बाद आता है राम का। अब राम क्या डेटर है? राम डेटर क्यों है? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। और जब किसी को हम माल बेचते हैं, स्टॉक बेचते हैं, तो कल को उससे पैसा मेरे पास आएगा। और जब पैसा आएगा तो वो मेरे लिए डेटर बन जाएगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो सेम इसका भी डेटर से खड़ा कर देते हैं राम का। तो मिस्टर राम अकाउंट, मिस्टर राम। मिस्टर राम किसमें आएगा फटाफट बताओ। Sundry debtor. नाइस, इसको भी हम 30 दिन का मोहलत दे देते हैं, ठीक है, ड्यू पीरियड। एंटर 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 एंटर। हमारे पास राम भी बन गया, विजय भी बन गया। सेल की एंट्री हम सेल के टाइम पे स्टॉक क्रिएट कर देंगे, परचेज में भी स्टॉक क्रिएट कर देंगे। बैंक अकाउंट हमारा बना है, राम अकाउंट हमारा बना है, तो हमारा पहला ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है। तो हम पहले 1 अप्रैल की एंट्री को हम अब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम 1 तारीख की एंट्री को कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एंट्री को। सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ है, अमन ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं अकाउंट में मन्नत फर्नीचर के। तो लेट्स एस्केप करके बैक करके आ जाओ। और फिर आपको आना है किसमें, वाउचर्स में। अब एक बात बताओ, कैपिटल का 5 लाख रुपए मन्नत फर्नीचर के पास आ रहा है, तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे, फटाफट बताओ। Receipt. Receipt. रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर की शॉर्टकट वाउचर की क्या होती है? रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F6. कल लिखवाया भी था मैंने। F6. क्या क्या F6 बोलो। F6. F6 वेरी नाइस अमेजिंग। और हमारा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें पैसा आ रहा है रिसीट का। और दूसरा किसका पैसा आ रहा है? कैपिटल का आ रहा है। नीचे कर देंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर अमन। कितने रुपए पैसे आ रहे थे हमारे पास? 5 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। 5 0 0 0 0 0। 5 लाख रुपए आ गए। फिर आप एंटर करेंगे। अभी हम इसमें ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर में कभी बिजनेस में काम करोगे, अकाउंट्स में काम करोगे, तो आप देखना कि आप चेक इशू कर रहे हो या जो भी कर रहे हो वो मोड डाल देना आप, ठीक है। अभी हम ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर में चेक नंबर डाल देना, बैंक नेम आप डाल सकते हो। अब नरेशन डालेंगे। नरेशन का मतलब डिटेल डालेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट, बीइंग कैपिटल, सॉरी, बी बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाई मिस्टर अमन ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज एज अ कैपिटल, ठीक है ना। ये मैंने क्या डाला, डिटेल में लिख दिया कि 5 लाख रुपए मेरे पास क्यों आए। एंटर एंटर। अब कैपिटल का पैसा मेरे पास आ चुका है मेरे बैंक में, मतलब मेरा बैंक 5 लाख रुपए से बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या करूँ, जैसे ही मेरे पास पैसा आया, मैं कहा पैसा भैया सबसे पहले काम करो, हमको परचेज करना है भैया। पैसा तो आ गया हमारे अकाउंट में, लेट्स परचेज। तो मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा। परचेज के लिए फिर से वाउचर में जाएंगे। और परचेज के लिए कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, फटाफट बताओ। F9 कौन सी शॉर्टकट की है परचेज के लिए, फटाफट। F9. एफ नाइन वेरी नाइस। F9 परचेज करा, लेट्स डू एंट्री। तो F9 में आप नीचे ये देख रहे होंगे, डबल बेड परचेज करा इन्होंने, इनवॉइस नंबर #PUR001। लेकिन देखो उसके सामने क्या लिखा है, डिटेल्स एट एंड ऑफ द सीट। सीट के नीचे दिया हुआ है परचेज की डिटेल। सो लेट्स गो टू द एंड ऑफ द सीट। परचेज कहाँ है इसमें, ये रहा। तो परचेज की डिटेल ये रही। हम डबल बेड परचेज कर रहे हैं, जिसकी 10 क्वांटिटी परचेज करें डबल बेड की। एक का रेट है 20,000 रुपए। इनवॉइस नंबर है PUR/001। अमाउंट 2 लाख रुपए। और किससे परचेज कर रहे हैं, विजय से परचेज कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ये डिटेल हमें दे रखी है। सिंपल जाएंगे हम टैली के अंदर। परचेज में सबसे पहले उसने पूछा सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा, ये रहा। ये PUR001। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, कंट्रोल वी से मैंने एंटर कर दिया PUR001। ये क्या है, मेरा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। एंटर किया। 1 अप्रैल को ही परचेज कर रहे हैं, जैसा डेट लिखा हुआ है। और पार्टी का नाम क्या था, मिस्टर Vijay. विजय। वेरी नाइस, मिस्टर विजय को सिलेक्ट किया। ये रिसीट वाउचर मैंने आपको कल बताया था, जो भी अगर वाउचर आप इशू करते हो उसमें रिसीट वाउचर डाल देना। और वो वाउचर्स पे डिपेंड करता है जो भी रिसीट नंबर होगा, ठीक है। डिस्पैच थ्रू। अब डिस्पैच थ्रू मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम कोई माल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो माल आ कैसे रहा है हमारे पास। जैसे बहुत सारे मार्केट में लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं, ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक्स, पैराडाइज लॉजिस्टिक्स, DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड, और ऐसे करके एक्सप्रेस हो गया, फेडेक्स हो गया, मतलब कई सारे वो है आपके पास।
लॉजिस्टिक्स वाले जो आपका जो स्टॉक होता है दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, तो डिस्पैच थ्रू में आपको उनका नाम डालना है, ठीक है ना। अब एग्जांपल के लिए आप लोगों को ले रहा था DTDC एक्सप्रेस, एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड, ठीक है ना। डेस्टिनेशन मान लो क्या है, दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली माल आ रहा है, दिल्ली। डेट मान लो 1 अप्रैल का, ये 1 अप्रैल को माल मंगाया, 1 अप्रैल को आ गया। मोटर व्हीकल नंबर, इसका मतलब क्या है, किस गाड़ी से आपका माल आपके पास आ रहा है जो आप परचेज कर रहे हो। जो भी हो आप गाड़ी का नंबर डाल देना, एंटर करेंगे मिस्टर विजय, मिस्टर विजय, मिस्टर विजय का एड्रेस सर डाल देंगे, जो भी मिस्टर विजय का। सर जो आपने हाँ, DTDC डाला है वो ट्रांसफर आईडी है क्या? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट आईडी दूसरा होता है। ट्रांसपोर्ट आईडी का मतलब क्या होता है, बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट आईडी का मतलब क्या होता है, जैसे DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जी जैसे किसी पार्टी का जीएसटी नंबर होता है, जैसे आप देखे हो जीएसटी नंबर होता है 15 नंबर का, जी जो दिल्ली में होंगे उसका 07 से स्टार्ट होगा, फिर पैन नंबर होगा, फिर 3 यूनिक डिजिट होगी, 15 नंबर का आपका जीएसटी नंबर होता है। वैसे ही सेम ना ट्रांसपोर्टर का एक ट्रांसपोर्ट आईडी होता है, वो भी ऐसे होता है 27 डिक्टेटेड डैश कोड 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 करके ऐसे होता है। जैसे आप ट्रांसपोर्ट आईडी ईवे बिल बनाते हो ना, जैसे आप ट्रांसपोर्ट आईडी ईवे बिल में डालोगे, वैसे ही उस पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट आईडी जो होती है वो डिजिट्स में होती है, किसी का नाम नहीं होता। ट्रांसपोर्ट आईडी इज जस्ट अ डिजिट, जस्ट लाइक अ जीएसटी नंबर। ये मेरा क्या है, जो DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड वो मेरा ट्रांसपोर्टर है, ना कि वो ट्रांसपोर्ट आईडी है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट आईडी हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट आईडी जस्ट लाइक अ जीएसटी नंबर, जैसे ही वो उसको फीड करोगे ईमेल में, आपका ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। गॉट इट। जी ठीक है, अब आते परचेज। अब परचेज हम विद जीएसटी वाला परचेज कर रहे हैं, विदाउट जीएसटी वाला परचेज कर रहे हैं, ये भी है। तो अभी हम जीएसटी इनेबल नहीं कर रखे टेली में, तो जो जीएसटी वाली जो क्लास होगी वो आपकी दूसरी मैम लेने वाली है, ठीक है ना। तो वो जीएसटी पढ़ाएंगे आपको, जिसमें जीएसटी इनेबल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जीएसटी इनेबल नहीं कर रखे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अभी हम इसमें लेजर बनाएंगे परचेज विदाउट जीएसटी। विदाउट मैंने लेजर बनाने का शॉर्टकट की क्या था, ओल्ड Alt C. ओल्ड सी, C, वेरी Alt नाइस। C. आप सबको याद है कि आप लोगों ने लिख रखा है, बहुत फटाफट आंसर दे रहे हो आप लोग, पता है आपको। ओल्ड सी, परचेज, परचेज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो आप, विदाउट जीएसटी ब्रैकेट ऑन। यहाँ पे किस सेट में डालोगे, परचेज परचेज, वेरी परचेज नाइस, अकाउंट। वेरी नाइस। अब परचेज में देखो हमने क्या परचेज कर रहे हैं, चलो शीट पे चलते हैं। परचेज पे हम परचेज करें डबल बेड, क्या परचेज कर रहे हैं, डबल बेड। तो हम यहाँ पे फिर से डबल ओल्ड सी करके, ओल्ड सी करके स्टॉक बनाएंगे, डबल, डबल बेड, ठीक है ना। अब डबल बेड आएगा मेरा किसमें, डबल बेड क्या है मेरा, फिनिश गुड्स है। अब फिनिश डबल बेड गुड ही खरीद रहा हूँ, डबल 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 बेड ही खरीद रहा हूँ, तो डबल बेड में मैं क्या ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, सीधा खरीदूंगा सीधा बेचूंगा पार्टी को, सिंपल सीधी सी बात है। हाँ, अगर मैं लकड़ी खरीदता, अगर मैं फैब्रिक खरीदता, ठीक है ना, तब मुझे उसमें उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ता। बट डबल बेड में क्या है कि सीधा मैंने डबल बेड खरीदा है और मैं उसको पार्टी को बेच दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओल्ड सी करके हम बनाएंगे, अंडर किसके आएगा, फिनिश गुड्स के, अंडर फिनिश्ड। प्राइमरी में रहने दो आप इसे, यस यस। हाँ, अब यूनिट्स, डबल बेड किस में होता है, फटाफट बताओ, यूनिट्स में फटाफट बताओ। सिंबल में क्या डालेंगे, PCS, और फॉर्मल नेम में क्या डालेंगे, पूरा उसका पूरा नाम, PIECES, दैट इज फुल नेम। एंटर एंटर, रेट ऑफ ड्यूटी अभी भी हम कुछ नहीं डाल रहे, कोई टैक्स नहीं डाल रहे, ठीक है ना। एंटर एंटर। अब डबल बेड आप देखो कितने का खरीदा है और कितनी क्वांटिटी खरीदी है, लेट्स गो। 10 पीस खरीदे हमने और 20,000 रुपए का एक है, तो क्वांटिटी में डालेंगे 10, रेट में डालेंगे 20,000, और एंटर करते देखो पीस अपने आप उठा लिया उसने, और 2 लाख रुपए प्राइस उन्होंने खुद उठा लिया। 2 लाख रुपए देखो सामने आ भी रहा है ना आपके, 20,000 रुपए का एक है तो 10 हो गया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हमने खरीदा, 2 लाख रुपए मैंने एंटर किया, एंटर किया, एंटर करा। फिर आपको एंटर करना है, न्यू रेफरेंस क्रिएट करना है, जैसे मैंने बताया था कि बिल वाइज मेंटेन करने के लिए रेफरेंस नंबर इज इंपॉर्टेंट, एज आई डिस्कस इन यस्टरडे क्लास, ओके। उसके नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर विजय, मिस्टर विजय 10 फर्नीचर, oh sorry 10 डबल बेड ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज ईच, ईच, ओके ठीक है, 20,000 रुपीज ईच हमने खरीदा है 10 बेड डबल बेड, एंटर एंटर। परचेज की एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेट्स बिगिन, लेट्स उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सबसे ऊपर जा रहा हूँ,
हमारी कैपिटल की एंट्री हो चुकी है, परचेज की एंट्री भी हो चुकी है, अब हमारी सेल की एंट्री है। तो पहले 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस में पैसा आया, फिर 5 लाख में से हमने 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया जो कि हमने उधारी में खरीदा है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है मिस्टर विजय को। तीसरी एंट्री आपकी आ रही है कि हमने उस जो डबल बेड खरीदा था उसको हमने बेच भी दिया है, और बेचा किसको है, मिस्टर राम को बेचा है, ठीक है ना। तो जैसे परचेज की एंट्री थी, सेम अब राम की सेल की एंट्री करेंगे। लेजर में आ जाइए। अब सेल के लिए कौन सा लेजर F8 सेलेक्ट करेंगे, फटाफट बताओ। सेल F8 F8, वेरी नाइस। F8 हमने प्रेस करा और यहाँ पे सेल आ गया, ठीक है ना। जस्ट मिनट, पानी पी रहा था मैं। तो हाँ, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ही हो रहा है। तो पार्टी का नाम क्या है, राम। क्या नाम था, सॉरी, राम ही था ना। हाँ, राम है। तो मिस्टर राम, डिस्पैच थ्रू, देखो पिछले में डालता हूँ डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड, इसमें डाल देते ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। जो माल हम खरीदते हैं वो डीटीडीसी से आया, जो माल मैं मार्केट में बेच रहा हूँ मैं ब्लू डार्ट से बेच रहा हूँ। इसी बहाने आपको 2 बंदों का नाम भी तो पता लग गया ना। मेरा यही मतलब था समझाने का। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद देखो, सेल में भी 2 तरीके की सेल डालोगे आप, सेल विद जीएसटी, सेल विदाउट जीएसटी। अभी हम क्या है, हमारी जो टर्नओवर है, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, जीएसटी लेने के लिए क्या होता है, टर्नओवर होता है। अगर आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप गुड्स के केस में वर्क करते हो तो 40 लाख रुपए की लिमिट है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की। अगर आप सर्विस के केस में काम करते हो तो आपकी लिमिट क्या है, 20 लाख रुपीज है। ठीक है, वो स्टेट स्टेट पे डिपेंड भी करता है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट भी होते हैं, उनके लिए लिमिट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। बट मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। 20 लाख रुपए लिमिट जीएसटी रजिस्टर नहीं करने की, और सर्विस के केस में, और गुड्स के केस में लिमिट जो होती है वो 40 लाख रुपए की होती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सर्विस भी करा, थोड़ा गुड्स भी बेच रहा है, उसके लिए जो लिमिट होगी वो 20 लाख रुपए की लिमिट होगी, ठीक है ना। तो इससे नहीं तो आप आजकल न्यूज में आता है, इंस्पेक्शन करते हुए कचौड़ी वालों को पकड़ा जीएसटी वालों ने, कि उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ चुकी थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कोई जीएसटी में अप्लीकेबल हो गया था। इस तरीके से जिसकी लिमिट क्रॉस होती है ना, जीएसटी वाले उसको ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। और हमें लेजर क्रिएट करना, तो ओल्ड सी, सेम वही, सेल्स विदाउट जीएसटी। सेल्स विदाउट जीएसटी किस लेजर में आएगा, सेल्स में आएगा। सेल्स अकाउंट, एंटर 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 एंटर। अब सेल्स में देखो हमने क्या सेल किया है, चलो एंट्री पे चलते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि सेल करते वक्त देखो उस पर क्या लिखा, डिटेल्स एट एंड ऑफ द शीट। तो सेल्स की डिटेल भी क्या है, एंड पे दे रखी है। चलो उस एंड पे चलते हैं, लेट्स गो। सेल्स, ये रहा। सेल देख रहे हो आप, 10 क्वांटिटी हमने खरीदी और 10 क्वांटिटी हमने सेल भी कर दी, मतलब जितने का माल मैंने खरीदा था पूरे का पूरा माल मैंने मार्केट में बेच दिया मिस्टर राम को। सेल कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बेचा, डबल बेड ही बेचा है, डबल बेड बेच दो। अब कितनी क्वांटिटी बेची, 10 क्वांटिटी बेची, 10 क्वांटिटी बेच दो। 20,000 रुपए की क्वांटिटी हमने खरीदी, एक क्वांटिटी हमने 20,000 रुपए की खरीदी थी मिस्टर विजय से, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 40,000 में, मतलब 40 100% का मुनाफा, 100% का मुनाफा, सीधा डबल बेच रहे हैं हम लोग। इतना तगड़ा हमारा बिजनेस है, इतना अच्छी हमारी बातचीत है मार्केट में, ठीक है। तो हमने 40,000 में मार्केट में माल बेच दिया, 40,000, एंटर एंटर, 4 लाख रुपए का माल बेचा, दैट इज 2 लाख रुपीज का हमने परचेज किया, 4 लाख रुपीज का हमने मार्केट में बेच दिया। सीधा सीधा मेरा 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अभी मेरे खर्चे भी तो हैं, उसको क्यों डालना है। फिर एंटर एंटर एंटर, न्यू रेफरेंस, जैसा मैंने पहले बताया था, नरेशन डाल दो, बी डबल बेड, डबल बेड परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर, सेल ओ मिस्टर यस 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 यस, वेरी नाइस। किसने बोला ये आशीष वेरी नाइस आसिफ, वेरी नाइस। बीइंग डबल बेड सेल, सेल टू किसको, मिस्टर राम को। मिस्टर 10 डबल बेड ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज 40,000 40,000 रुपीज, 40,000 ईच, ठीक है ना। एंटर एंटर। अब हमारा क्या हुआ, सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया, कैपिटल भी आ गई, तीनों एंट्री डन। चलते हैं हमारे असाइनमेंट के ऊपर।
तो हमारे देखो आपने हमारी बैंक वाली एंट्री भी होगी, कैपिटल वाली एंट्री भी होगी, परचेज वाली एंट्री भी होगी, सेल वाली भी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री एक और चौथी एक और एंट्री आ रही है क्या, कि बैंक में पैसा आ रहा है, राम से पैसा आ रहा है, जो राम को हमने बेचा था ना। अभी आपने देखा राम को मैंने 4 लाख रुपए का माल बेचा, तो राम ने क्या बोला, राम ने मेरे को कुछ पैसे दे दिए। 4 लाख में से मेरे को राम ने 2.5 लाख रुपए दे भी दिए, कि भाई उसने बोला कि 4 लाख रुपए का पैसा है, तो मैं पूरा बाद में नहीं, मैं आपको 2.5 लाख अभी दे रहा हूँ, 1.5 लाख आपको बाद में दूंगा, कोई बात नहीं, तो पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो पैसा रिसीव कर लेते हैं, 1 तारीख को पैसा रिसीव करना है। तो रिसीव के लिए क्या होता है हमारा शॉर्टकट की, फटाफट बताओ। F6. F6. F6। और बैंक कौन सा मेरा, पंजाब नेशनल बैंक। और किससे आ रहा है, राम से, तो राम को दे रहे हैं, राम ले रहे हैं। हाँ ले हाँ रहे हैं, ले ले रहे रहे हैं, हैं, इसे ले राम रहे से हैं। ले रहे हैं, राम से। तो मिस्टर राम राम से से पैसा ले लेंगे, कितना पैसा लेना, 2.5 लाख रुपए ले लेंगे, ढाई ठीक है। लाख रुपए अब 2.5 लाख को एंटर करते हैं, आप देखोगे अगेंस्ट में इस किस वाले के इस रेफरेंस वाले इनवॉइस को हम अटैच कर रहे हैं, एक्टिविटीज का ड्यू पीरियड भी आ रहा है, एंटर। अब आप एक चीज और देखेंगे कि देखो जो राम आ रहा है ना, राम के नीचे वो करंट बैलेंस आ रहा है, इसमें ना ये भी दिखाता है कि अब उसको मुझे कितना देना है, अब उससे मुझे कितना लेना है। तो देखो 4 लाख रुपए राम से मेरे को लेना था, लेकिन राम ने जब मेरे को 2.5 लाख रुपए दिया, तो आप देख रहे हो राम के नीचे करंट बैलेंस में 1.5 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए उसने मेरे को दे दिया, लेकिन अभी भी 1.5 लाख रुपए डेबिट है मेरे पास। मतलब 1.5 लाख रुपए मुझे राम से अभी और लेना है। तो आपको अगर पता करना हो तो आप एंट्री के टाइम पे भी देख सकते हो कि किस पार्टी से कितना लेना है और कितना देना है, क्योंकि उस पार्टी के नीचे करंट बैलेंस भी शो करता है, ठीक है ना। फिर से वही हम इसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, जैसे में डाल देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, एक तो ये एडवर्टीजमेंट में परेशान कर रखा है, ठीक है ना। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम राम राम, कितना हमने रिसीव करा, 2,50,000 रुपये। आप चाहे यहाँ पे डाल भी सकते हो कि पहले से अगर पेंडिंग हो, स्टिल 1,50,000 रुपीज, स्टिल 1,50,000 रुपीज पेंडिंग, एंटर एंटर। तो हमारी देखो आप ये चारों एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब आते हैं 2 तारीख वाली एंट्रीज पे। पहली तारीख की एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेट्स गो टू द सेकंड डे एंट्री। अब सेकंड डे एंट्री में देखोगे हमारे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो हम अब खर्चे डालना शुरू करते हैं। जो खर्चे के लिए जो यूज करते हैं, हम वो यूज करते हैं जनरल वाउचर। यूज जनरल करते हैं वाउचर जनरल वाउचर। जनरल जो वाउचर परचेज के लिए परचेज वाउचर, सेल्स के लिए सेल्स वाउचर, और आपका पैसा रिसीव करने के लिए रिसीव वाउचर, पैसा पे करने के लिए पेमेंट वाउचर। वही जब हमारे खर्चे होते हैं नॉर्मल, तो उसको हम जनरल वाउचर में बुक करते हैं। और जब पेमेंट करते हैं उसको, तो हम पेमेंट वाउचर से पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जनरल वाउचर में बुक करेंगे और बाद में उस खर्चों की पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स गो। सबसे पहले जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर की शॉर्टकट की कौन बता सकता है, फटाफट बताओ, राइट साइड में लिखा हुआ है। F7 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 जनरल वाउचर ठीक है, F7. ठीक ठीक है ना। तो डेबिट में क्या डालेंगे, देखो वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस एक्सपेंसेस पेबल। अब क्या होता है देखो, कोई भी खर्चा हम बुक कर देते हैं, ठीक है ना, तो जरूरी तो नहीं है कि वो खर्चा हम तुरंत पे करेंगे। जैसा मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी में बताया था ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो 10 तारीख का आता है, लेकिन हम 10 तारीख को थोड़ी पेमेंट कर देंगे, हम पेमेंट करेंगे ड्यू डेट पे। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो पेमेंट की जो ड्यू डेट थी, 10 तारीख वाले बिल की, उसकी ड्यू डेट थी 20 तारीख। तो मैंने क्या करा, मैंने 18 तारीख को पेमेंट करी, लेकिन जो बिल बुक होगा वो बिल की डेट से बुक होगा, मतलब वो 10 तारीख को मैं बिल बुक कर दूंगा, और जब पेमेंट करूंगा तो वो 18 तारीख की डेट आएगी। तो मैं क्या डायरेक्ट बुक करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी सिटी एक्सपेंस टेबल पेबल। टेबल तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल वो मुझे पे करना है, दैट इज माई करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब क्यों, क्योंकि वो 1 साल के भीतर मुझे पे करना है, ठीक है ना। वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जो आपने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था, तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो होती है हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि उसको 1 साल के बाद भी मुझे पे करना होता है, दैट इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बट जो जो ये खर्चे होते हैं उससे हमें 1-2 महीने के भीतर ही पे करना होता है, इसलिए हमारे करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो अब आते हैं वेजेस एक्सपेंस। तो वेजेस तो हमारा खर्चा होता है, और वेजेस डायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा होता है, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। Sir, direct खर्चा, direct expense. डायरेक्ट खर्च, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, है ठीक है ना। तो डेबिट में करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ओल्ड सी। यहाँ लिखेंगे वेजेस एक्सपेंस, और डालेंगे किस साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। अब वेजेस एक्सपेंस हमारा कितना था, 20,000 रुपीज।
20,000 रुपीज डेबिट, और फिर यहाँ पे देखो फिर से डेबिट आ रहा है, बट हमें क्या करना है, क्रेडिट। हाँ, एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस पेबल करोगे आप। पेबल की जगह यूज कर सकते हो वर्ड आउटस्टैंडिंग, जो आप नॉर्मली पढ़ते भी होगे, तो आप आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट भी कर सकते हो। वेजेस पेबल भी यूज कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी पे कर सकते हो, मतलब आपको पे करना था बट आपने पे नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। और पेबल का मतलब क्या होता है, फिर भी वो आपको पे करना ही है, मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो लेजर को, लेकिन अभी हम पेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वेजेस एक्सपेंस लेजर मुझे बनाना पड़ेगा, वेजेस एक्सपेंस तो मैंने बना दिया, लेकिन वेजेस एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग वाला भी मुझे लेजर बनाना पड़ेगा, जो मेरा क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी में। लेट्स क्रिएट ओल्ड सी वेजेस पेबल, ये हमारा किसमें आएगा, करंट लायबिलिटी में, ठीक है ना, क्योंकि हमें अभी इसको पे करना है। ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए एक दायित्व है एक तरीके से। एंटर एंटर कर दिया है मैंने, 20,000 रुपये से मैंने वेजेस पेबल बुक कर दिया। तो बीइंग यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग वेजेस एक्सपेंस बुक्ड, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे, पे हम बाद में करेंगे। और हाँ, डेट क्या थी इसकी, डेट तो देखा नहीं, 2 तारीख है, डेट 2 तारीख है, मैंने सोच 1 तारीख सेलेक्ट कर रखी है। डेट सेलेक्ट करने का की क्या होता है, F2, क्या होता है, F2। ये F2 वाली की लिख लो, ये जरूर क्वेश्चन बैंक में आएगा जो लास्ट में होने वाला है। इस पे आप लोगों को कैसे इंसेंटिव की बात भी चल रही थी, तो ये जो शॉर्टकट कीज बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो जनरली कह रहा हूँ, आप सभी चीजों को नोट करो, ये चीजें पूछूंगा मैं एग्जाम में, मतलब ये चीजें आएंगी आपके एग्जाम्स में, कि लेजर कैसे देखते हैं, DAL करके जो सिखाया था मैंने, डेट कैसे सेलेक्ट करते हैं, F2 से करते हैं, लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, ओल्ड सी से क्रिएट करते हैं। इस ऑल शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज बी नोटेड, ओके। तो हम डेट्स मैंने 2 अप्रैल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा बी वेजेस एक्सपेंस बुक्ड, एंटर। अब क्या हो, मेरा वेज एक्सपेंस बुक हो चुका है। ऐसे ही मेरे को सैलरी एक्सपेंस बुक करना है, रेंट एक्सपेंस बुक करना है, और बैंक का इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है। तो वेजेस मैंने बुक चुका हूँ, ऐसे ही मेरे को सैलरी बुक करना है, तो सेम सैलरी एक्सपेंस भी सेम ऐसे बुक करेंगे। ओल्ड सी सैलरी एक्सपेंस बनाएंगे पहले, ये हमारा किस में आएगा, सैलरी एक्सपेंस फटाफट बताओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Indirect. Indirect. इंटरनेट एक्सपेंस मैंने एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। सैलरी एक्सपेंस मेरा कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज। क्रेडिट में क्या डालोगे, फटाफट बताओ। सैलरी एक्सपेंस टेबल। Salary किसके payable. अंदर, किसके अंदर, करंट लायबिलिटी। शाबाश। नरेशन क्या लिखोगे, सेम, बीइंग सैलरी एक्सपेंस। चलते नेक्स्ट थर्ड एंट्री में, वो भी रेंट एक्सपेंस है, वो भी सेम आपका रेंट एक्सपेंस अकाउंट सर डेबिट टू मेरा बैंक एक पेबल। क्वेश्चन है। पूछो पूछो। सर जैसे आपने सैलरी पे किया है जनरल में तो एक ही एंट्री की है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, तो हम अलग अलग को पे करेंगे तो अलग अलग एंट्री करेंगे कि एक ही में एंट्री करेंगे? एक एंट्री, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपका नाम क्या, पहले बताओ नाम और कहाँ से हो आप। सर विक्की फ्रॉम दिल्ली। हाँ, तो विक्की, देखो आपका भी नाम विक्की, मेरा भी नाम विक्की है। तो देखो, जब आपकी बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे ना, तो आप एंट्री जो बुक करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी 1 लाख रुपए का टोटल सैलरी का खर्चा है, और आपके 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। 10 एम्प्लॉय हैं, 1 लाख रुपए का टोटल आपका सैलरी का खर्चा है, और आपको हर एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार रुपए देने हैं। तो 10 एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार रुपए करके आप 1 लाख रुपए दोगे, तो आपका 1 लाख का खर्चा हो गया। और हर एम्प्लॉय को आपको 10-10 हज़ार रुपए देने हैं, 10 एम्प्लॉय को। तो आपका खर्चा कैसे बुक का मैं बताता हूँ। जैसे वो 10 जो बंदे हैं ना, उनका नाम है Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3, Mr. 4, Mr. 5, Mr. 6, Mr. 10 तक। तो आप जो खर्चा बुक करोगे, दैट इज सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से, ठीक है। टू टू सैलरी पेबल की जगह क्या करोगे, आप इम्प्लॉयज के नाम डाल दोगे। टू विक्की, जैसे Mr. A अकाउंट, एक मिस्टर दस वन। हजार रुपए। टू Mr. B, Mr. 2 10,000 रुपीज, Mr. 3 10,000, Mr. 4 10,000, Mr. 5 10,000। ऐसे करके आप सब में बुक कर दोगे। अब आपके जितने भी एम्प्लॉय होंगे, Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 से लेके Mr. 10 तक, वो सारे क्रेडिट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट मतलब क्या, वो आपकी लाइबिलिटी है। और जब आप उन एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे, तो Mr. 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। तो आपने एक ही एंट्री में सारे एम्प्लॉय का खर्चा बुक कर लिया, और जब जब जिस जिस एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे, वो पेमेंट वाउचर से आप उसकी पेमेंट एंट्री मार दोगे। आई थिंक विकी यू गॉट इट। यस सर। लेट्स बिगिन, लेट्स कंटिन्यू टू आवर क्लास। रेंट एक्सपेंस हम बुक कर रहे थे, रेंट एक्सपेंस हमारा किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, फटाफट बताओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Indirect. Indirect.
तो रेंट एक्सपेंस हमारा कितने का था, दैट इज 15,000 रुपीज। और पेबल में क्या करेंगे, फटाफट बताओ फटाफट। रेंट एक्सपेंस पेबल, करंट लायबिलिटी। क्योंकि बताओ क्लास का टाइम हो चुका है तो हम थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं। करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, बीइंग मंथ एक्सपेंस बुक्ड, ठीक है ना। अब रेंट एक्सपेंस भी आपका बुक हो गया। अब आपका लास्ट आ रहा है, लास्ट जो पॉइंट आ रहा है, बैंक का इंटरेस्ट आया है। क्या होता है, जैसे आप बैंक, कई बार क्या बताता ना आपको, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, जैसे मैंने एफडीआर करा रखी है, कुछ भी करा रखा है, तो मैं ब्याज का पैसा आ रहा है, ब्याज का पैसा आएगा, वो हमारे लिए इनकम होगा। लेकिन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, नहीं है ना। नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा काम इन्वेस्ट करना थोड़ी है, फर्नीचर का काम नहीं है। करते हैं हम, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इज नॉट माई बिजनेस। तो जो इंटरेस्ट का पैसा इन आ रहा है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम इनकम। होगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, रिसीट की इसमें वाउचर कौन सा यूज करेंगे, फटाफट बताओ फटाफट। पैसा आ रहा है मेरे पास, कौन सा वाउचर यूज करेंगे, जैसे रिसीट वाउचर। और यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, ओल्ड सी से क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन, बैंक, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बैंक, बैंक इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना। एंटर एंटर एंटर, कितना रुपए रिसीव हुआ था मेरे को बैंक के अंदर, 5,000। 5,000 रुपए, ठीक है ना। तो 5,000 रुपीज 15000, दैट इज 5,000 बैंक। एंटर 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 एंटर, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, एंटर एंटर, फ्रॉम ठीक है ना। एफडी। तो मेरी ये वाली एंट्री भी हो गई। अब आते 30 अप्रैल, बस ये लास्ट एंट्री है हमारे पास। ये 3 एंट्री करते हैं हमारा पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट सब कुछ बन जाएगा। बस जस्ट होल्ड इट फॉर द 10 मिनट्स। 30 अप्रैल को एंट्री शुरू करते हैं। देखो जो हमने खर्चे पेबल बुक करे थे ना, वेजेस वाले, रेंट वाले, सैलरी वाले, वो सारे अब हम पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे मंथ का एंड। अब देखो मंथ का एंड आएगा तो कहीं ना कहीं जितने हमारे एम्प्लॉय होंगे वो चिल्लाएंगे नहीं कि आपने सैलरी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो हमें उनको पैसा देना पड़ेगा ना। तो पैसा देने की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो 30 अप्रैल में आते हैं अब। तो लेट्स सेलेक्ट, सेलेक्ट एंट्री की डेट सेलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट की थी, फटाफट बताओ। F2। 30 अप्रैल को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये तो नहीं F2। दिया। अनफॉर्चुनेटली 30 अप्रैल नहीं दे रहा है, ड्यू टू एजुकेशन मोड। ये मेरा 30 अप्रैल डेट सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 तारीख को ही दे देते हैं सैलरी, क्योंकि देखो एजुकेशन मोड है। एजुकेशन मोड में सिलेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार 11 अप्रैल करके देखें। चलो हम 2 अप्रैल को सैलरी देते हैं, क्योंकि एजुकेशन मोड है ना टैली का, तो वो अप्रैल में काम नहीं 30 करेंगे। तारीख होता है। 30 तारीख नहीं, 30 तारीख ले नहीं रहा है, लेकिन देखो 30 अप्रैल नहीं ले रहा है। चलो हम 2 तारीख कर लेते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक से करेंगे, हमारे पास एक ही बैंक है, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब में। तो हमने क्या करा, वेज पे करा है, क्या करा है, वेजेस पे करें। अब हाँ एक चीज और देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप, तीनों चीजों को, तो तीनों आउटस्टैंडिंग की पेमेंट थी वो एक ही बार में इन्होंने पे कर दी। तो इन्होंने क्या करा, बैंक से क्या करा, तीनों एक्सपेंस को, जो पेबल था, जो पेबल अकाउंट था वेजेस का, वो इन्होंने क्या करा, इकट्ठा ही पे कर दिया, वेजेस पेबल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वेजेस पेबल, जो हमारा वेजेस पेबल खड़ा था बुक्स में, देखो 20,000 पैसे, देखो करंट बैलेंस खड़ा है, तो आप सब देख सकते हो, देखो ये रहा। तो हमको 20,000 रुपये देना है, 20,000 रुपये मैंने दिया, एंटर। तो देखो मेरा वेजेस पेबल देखो खत्म हो गया, बैलेंस, करंट बैलेंस खत्म हो गया। वैसे सेम मेरा सैलरी पेबल आ रहा है, तो सैलरी पेबल SALARY सैलरी पेबल सेलेक्ट किया, कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज का आ रहा है, 30,000। 30,000 रुपीज मैंने ये भी पे कर दिया। लेट्स क्या आ रहा है, रेंट एक्सपेंस का रेंट पेबल आ रहा है, रेंट पेबल को मैंने सेलेक्ट किया, कितना था, 15,000 रुपये था, उसको भी मैंने पे कर दिया। तीनों मैंने पे कर दिया बैंक से, और एंटर किया, एंटर किया, फिर मैंने किस में पे करे, ये करके डिटेल डाल देना आप, जो भी होगी डिटेल, डिटेल बीइंग एक्सपेंसेड, एक्सपेंसेड पेड, ठीक है ना। एंटर 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 एंटर, ठीक है ना। तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब हमारे पास लास्ट एंट्री है ड्राइंग्स की। कौन बताएगा, फटाफट बताओ ड्राइंग्स क्या होती है, फटाफट बताओ। तो जो हम सर जब पर्सनल यूज के पर्सनल लिए यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए तो ऑनर निकालता है वो ड्राइंग से। ठीक है, विड्रॉ तो हम करते इसमें हैं। लेजर क्रिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आता है किसमें, किस लेजर में आएगा, फटाफट बताओ। कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ऑनर ओनर सर कैपिटल में से निकालते हैं ना पैसा।
पर्सनल यूज। हाँ वेरी नाइस वेरी। कितने रुपए निकाला? 10,000 पे। 10,000 एंटर करते, एंटर एंटर, यहाँ पे नरेशन में डाल दो, ई फंड ट्रांसफर। नरेशन में डालेंगे क्या? बीइंग मिस्टर अमन withdrawal of rupees 10,000 rupees for his personal use, for his personal use, enter enter। अब देखो ये लास्ट एंट्री थी हमारी, खत्म हो चुकी है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टीम। हमारी जो डेबिट और जो हमारी जो एंट्रीज थी, नाउ इट्स ओवर। लेट्स सी द रिजल्ट्स। अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे, क्या हमारा जो रिजल्ट है, जो टैली में जो रिजल्ट आता है बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल अकाउंट का, क्या वो हमारे इस असाइनमेंट से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। और 10:06 पे हमने खत्म कर दिया। सो इट इज गुड। सो लेट्स चेक। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले एस्केप करके बाहर आ जाओ। फिर आप सब देखेंगे लास्ट में रिपोर्ट्स में ना सेकंड ऑप्शन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड ऑप्शन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हुए आ जाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब देख सकते हैं कि देखो सामने आपके ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है। दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट? यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आ रहा है? परचेज, कि मैंने कितना परचेज करा है। देखो हमारा भी आ रहा है, ये देखो परचेज। तो परचेज, और यहाँ पर ही परचेज आ रहा है, देखो सेम। परचेज 2 लाख, परचेज 2 लाख रुपए, जो हमने 2 लाख का परचेज किया था, मेरा मैच हो गया। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा क्या आ रहा था? 20,000 पे क्या था डायरेक्ट एक्सपेंस? फटाफट बताओ क्या था वो? वेजिस वेजिस वेजी। वेजेस था। तो ये भी देखो वेजेस आपका, देखो ये भी देखो वेजेस भी मैच हो रहा है। और तीसरा हमारा जो सेल किया था हमने, डबल बेड, वो एक बेड कितने का लिया था और एक बेड हमने कितने का बेचा था? फटाफट बता दो। सर 2 लाख 20,000 का 40,000 लिया था, के 10 40,000 बेड। हाँ 20 40,000 रुपए के 10 20,000 का बेचे थे, लिया बिल्कुल सही था, है। 20,000 और का 20,000 रुपए का परचेज 40,000 किया लिया था। था, 40,000 रुपए का सेल किया हमने। तो टोटल सेल वैल्यू क्या थी हमारी? 4 लाख। 4 लाख रुपए। 4 देखो लाख। सेल वैल्यू 4 लाख रुपए आ रही है। 4 लाख रुपए हमारी सेल वैल्यू हमारे टैली में आ गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा नहीं। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख का हमने माल खरीदा था, उस 2 लाख को पूरा पूरा बेच दिया, वो भी 2 लाख के प्रॉफिट में। 2 लाख का हमने डबल बेड खरीदा था और हमने 4 लाख में बेच दिया, तो स्टॉक तो हमारा सारा खत्म हो गया। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 0 है। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 1,80,000। और यहाँ पर कितना आ रहा है? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,80,000। 1,80,000 तो इसका मतलब क्या है? हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या हुआ? मैच हो गया। मैच हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने खर्चों के ऊपर। तो चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो यहाँ पे 45,000 रुपए का खर्चा आ रहा है टैली के अंदर, कि आपने 45,000 रुपए के खर्चे किए हैं। लेट्स इसमें चेक करते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो देखो इसमें सैलरी 30,000 रुपए की आ रही है। हम चलते इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करके घुसते हैं, एंटर। तो आप सब देखते हो रेंट एक्सपेंस आ रहा है 15,000 रुपए का ऊपर। और यहाँ पर भी देखो रेंट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 15,000 15,000 रुपया। रुपए का। और सैलरी 30,000 रुपए की आ रही है, और हमारी सैलरी कितने की आ रही है? 30,000 रुपये की। 30,000 रुपए की। तो 45 यहाँ भी आ रहा है, 45 हमारा भी आ रहा है, ये भी मैच हो गया, बिल्कुल एक्जेक्टली मैच हो गया। उसके बाद बैक करेंगे तो इनडायरेक्ट मस हमारे 45 का 45 हमारा मैच हो गया, जैसे हमने एंट्री करी थी। नेक्स्ट आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपका 1,40,000 यहाँ पे आ रहा है, और आपका सॉरी 1,80,000 पे आ रहा है, ये रहा देखो। और यही सेम ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पर भी आ रहा है, दैट इज 1,80,000 रुपीज। ये भी आपका मैच हो गया। और आपका जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है इनकम भी। 5,000 रुपए का, ये कौन सी इनकम थी? कौन बताएगा? फटाफट बताओ, 5,000 की कौन सी इनकम थी? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था बैंक से। इंटरेस्ट रिसीव होता है, वेरी नाइस। और यहाँ पर भी देखो बाई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है हमारा 5,000 रुपीज। तो हमारा देखो 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। और हमारे टेली में कितना आ रहा है? 1,40,000 नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पीएनएल अकाउंट मैच। मैच हो गया। मैच हो गया। अब पीएनएल अकाउंट मैच होगा। आपको एक और चीज बताता हूँ, जब भी पीएनएल अकाउंट बन जाए ना, तो आपको और चीज चेक करना होता है कि रेशो होती है ना, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, कितना परसेंटेज है सेल्स के ऊपर। तो उसको चेक करने का जस्ट शॉर्टकट की बता रहा हूँ, F12 प्रेस करेंगे आप। और 12%। यहाँ पर जो 100% लिखा होता है ना, 100%। यस 100%, उसको आप यस कर यस। देंगे, दैट इज वाई। वो एंटर करेंगे, फिर एंटर एंटर। करेंगे, फिर एंटर 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 एंटर। तो आपको दिख जाएगा कि कितने परसेंट 45%। आपका बेनिफिट हुआ है। मतलब सेल आपकी 100% होती है, उस पर लगता है सारा परसेंटेज। तो आपने सेल 100% पे 45% का आपका ग्रोस प्रॉफिट था,
जैसे पूछते नहीं है, आपने 45% शार्क net शार्क profit। आपने शार्क टैंक देखा होगा मार्केट में, कभी शार्क टैंक देखते होगे आप, तो उसमें क्या बोलता है कि आपका जीपी कितना रेट हो, जीपी कितना होता है आपके बिजनेस में, तो वो जो पूछते हैं ना जीपी कितना होता है, एनपी कितना हुआ है, जीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रॉफिट। तो वो जो शार्क टैंक में जो पूछते हैं ना कि आपके बिजनेस में जीपी कितना है, एनपी कितना है, यही चीज पूछ रहे होते हैं उन लोगों से कि आपके बिजनेस में जीपी कितना होता है और एनपी कितना होता है। इससे पता लगता है कि आपके बिजनेस में मार्जिन कितना है, ठीक है ना। तो वो मार्जिन निकालने के लिए जीपी और एनपी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जीपी कितना हुआ 45% और एनपी कितना हुआ बताओ फटाफट, एनपी कितना है, कितने परसेंट? 35%। 35%। 35%। वेरी गुड। तो हमारा जो पीएल अकाउंट था वो मैच हो चुका है हमारा। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट में आप सब देख रहे होंगे कैपिटल अकाउंट में आ रहा है 5 लाख रुपीज। इसमें नेट प्रॉफिट जो हमारा 1,40,000 रुपए का है वो ऐड हो चुका होगा, और ड्राइंग लेस हो गई होगी, तो हमारा जो एडजस्टेड कैपिटल जो बचेगा वो बचेगा 6,30,000 रुपए का। अब हम बैक स्पेस करते हैं और बैलेंस शीट पे चलते हैं, ठीक है ना। बैच में एंटर करा, कितना आ रहा है हमारा 5 लाख रुपए आ रहा था कैपिटल, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड हुआ, और 30-10,000 रुपए का हमारा ड्रॉइंग्स माइनस हुआ। हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई 6,30,000 रुपए आ गई इसके अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 4,90,000 प्लस 1,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, अभी कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल कितने की बन जाएगी 4,90,000 प्लस 6,30,000। 140 कितना हुआ फटाफट बताओ 6,30,000। 6,30,000 रुपए। और हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, 6,30,000 इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट भी मैच है, कैपिटल मैच है। अब कैपिटल मैच है। हाँ यही मैं पॉइंट देख रहा था कि बैलेंस शीट मैच कैसे बोलते हो, अभी तो कैपिटल मैच हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। अभी हमारा देखो, अभी हाँ अभी हमारा एक और पॉइंट रहता है, क्या है वो क्रेडिटर। 2 लाख रुपए का हमारा विजय क्रेडिटर में खड़ा है, तो हमारा देखो लाइबिलिटी में आ रहा है क्रेडिटर। एंटर करो करंट Yes, लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है हमारा क्रेडिटर। तो एंटर करोगे तो हमारा संडी क्रेडिटर में मिस्टर विजय, और विजय। यहाँ पर भी देखो मिस्टर विजय आ रहा है क्रेडिटर में, 2 लाख रुपए से खड़ा है बैलेंस शीट में, और हमारा भी 2 लाख रुपए से ये खड़ा है क्रेडिटर। तो हमारा ये वाला भी बैलेंस मैच हो गया। तो हमारा कितना आ गया, हमारी लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है नीचे देखो, ये रहा कितना आ रहा है, 8,30,000। लाख और तीस यहाँ पर हजार कितना आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है। 8,30,000। इसका मतलब हमारी 8,30,000 लाइबिलिटी पूरी क्या हो गई मैच। मैच। मैच हो गई। अब बैंक भी चेक करते हैं हम। अब ये आते हैं एसेट के ऊपर। एसेट में करंट एसेट में आता है हमारा बैंक, एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आ रहा है 0। 2 लाख का हमने आइटम, 2 लाख का माल परचेज किया था, और 2 लाख का हमने 4 लाख में बेच दिया, तो हमारे पास स्टॉक तो बचा ही नहीं, वो तो पूरा नील हो गया, जीरो। स्टॉक इज ओवर। अब बात करते हैं सनी डेटर के अंदर। सनी डेटर पे कितना आ रहा था हमारा, राम डेटर था जो 1.5 लाख रुपए जिससे बेटर। लेने थे हमें, ठीक है ना। 2,00,000 रुपये। तो सनी डेटर में मिस्टर राम कितने से आ रहा है 1.5 लाख 1,50,000 से आ रहा है रुपये। पूरा, तो राम भी मैच हो गया। अब आते हैं बैंक अकाउंट में मेरे कितने पैसे आ रहे हैं 6 लाख, 6,80,000। और यहाँ पर कितने आ 80,000। रहे हैं 6,80,000 6 लाख। रुपए। कैसे आ रहे 80,000। हैं 5 लाख रुपए बैंक में ओपनिंग में आया था कैपिटल अकाउंट, जो हमारे मिस्टर रमन ने इन्वेस्ट किए थे। फिर हमें राम से 2.5 लाख रुपए आए थे, जो हमने सेल करा था राम को। 4 लाख का माल बेचा था, 2.5 लाख रुपए उसने हमको दे दिए थे, 1.5 लाख उसे बाद में देगा, जिसके लिए देखो वो खड़ा भी था 5 अभी मेरे 1.5 लाख को रुपए से। इंटरेस्ट हुए थे। इंटरेस्ट की इनकम 5,000 आई थी हमारे अकाउंट में। 7,55,000 रुपए का हमारे पास इनकम आ गया था। फिर हमने एक्सपेंस पे करे 65,000 रुपए के, और ड्रॉइंग्स पे की 10,000 रुपए की, तो टोटल में हमारा बैंक 10,000। में बचा 6,80,000 रुपए का, जो हमारा मैच हो 6,80,000 गया। रुपये। अब बैक करेंगे तो देखो 8,30,000 रुपये हमारा एसेट भी आ रहा है, और हमारे यहाँ पर भी एसेट कितना आ रहा है 8,00,000। 8,30,000 इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एसेट लाइबिलिटी भी क्या हो गई मैच हो गई। तो हमारा पीएनएल अकाउंट भी मैच हो गया, और हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई। मैच हो अब गई। आप समझे कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से टेली में डाटा बनाते हैं। यस आई सर। होप मैंने Yes, बहुत बहुत इजी तरीके से और आप लोगों को बहुत प्यार से एक एक एंट्री को समझाया है, तो आई होप आप सब इसका फायदा जरूर उठाएंगे, ठीक है ना। तो अभी किसी यस। को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम वैसे ही 15 मिनट एक्सेस हो चुका है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि विक्की सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि अब किसी को डाउट ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये जो विक्की सर ने 4 क्लासेस में सिखाया है, ये मैंने 6 महीने लगा दिए सीखने में, जो आपको 4 दिन में सीखने को मिला है। तो इसको आप, मैं यही बोलूंगी कि आप जरूर प्रैक्टिस करें, सेम चीजें सारी एंट्रीज को बार बार देखें, इससे आपको पूरी अकाउंट समझ में आ जाएगी कौन सी एंट्री कैसे होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आई होप सो आपको आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी।
अब मैं दीप्ति चावला मैम को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर वैल्यूएबल रिमार्क्स. मैम, ओवर टू यू. यस, नमस्कार एवरीबॉडी. बिल्कुल सही बोला आपने. आपका क्या नाम है? अभी जो लास्ट में जो आपने रिमार्क किया था, जरा बताएंगे आप अपना नाम मुझे? संजू. हाँ संजू, आपने बिल्कुल ठीक कहा संजू. आपने तो ये किया हुआ है, 6 महीने आपने लगाए हैं और आपने टेली कोर्स किया हुआ है, पर मैंने तो ये इस कोर्स को नहीं किया हुआ है. पर जिस तरह से कॉन्फिडेंटली और पेशेंटली विकी ने क्लास ली है, पिछली 3 क्लासेस मैंने विकी की अटेंड करी हैं, और जिस तरह विकी ने बताया कि कैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग वाउचर क्रिएट करते हैं, किस तरह से बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है, और एक एक चीज को बताने के बाद फिर ये बताया कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है. वो चीज मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगती है. शॉर्ट की क्या है, किस तरह से उन शॉर्ट कीज को हम यूज करें, और एक ही बार नहीं बताया, हर बार जब भी उसको यूज करना है तो वो ऑडियंस से अपने लोगों से पूछा जा रहा है और वो बता रहे हैं. तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी. और उसके अलावा जिस तरह आज आपने टाइप्स ऑफ वाउचर्स बताए, सेल, परचेज, कैपिटल, और उसके बाद किस तरह से मतलब किस तरह से हम उसमें जनरल वाउचर में वो खर्चा आता है, और किस तरह से एक एक जो हमारी एंट्री थी वो आपने करनी सिखाई, और उस एंट्री के बाद आपने बैलेंस शीट में जाकर उसको देखा कि किस तरह कैपिटल मैच कर रही है, किस तरह हम. मैं ये सोच रही थी कि एक तरह से विकी आप हमें टेक्नो वर्ल्ड में लेकर जा रहे थे, कि पहले जब हमें कभी बैलेंस शीट तैयार करनी होती थी कि ये हमारा ये रेवेन्यू है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हमें बहुत समय लगता था. अब मुझे ये देखकर ये लग रहा था कि टैली में अगर हम लोग ये बच्चे ये सब चीजें सीख जाएं तो कितनी अच्छी तरह से ये लोग ये काम कर सकते हैं. और खाली करना नहीं है, ये एम्प्लॉयबिलिटी है. मतलब आपको काम सीखने के साथ साथ आपको रोजगार मिल सकता है. तो मुझे लगता है सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो मुद्दा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो आपको रोजगार के लिए तैयार करना है. और किस तरह से ये बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, आप सचमुच साधुवाद के पात्र हैं. विकी, kudos to you, good job done, बहुत बढ़िया. And thank you so much. Thank you everybody. थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल रिमार्क्स. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज टर्न योर कैमरा सो दैट वी कैन टेक द पिक्चर. प्लीज कैमरे ऑन कर लें सब. थैंक यू एवरीवन. Now I am requesting to every student to kindly drop your attendance in chat box with your name and last 4 digit your mobile number. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कल हमारी जीएसटी की क्लास है, तो आपने जो एंट्रीज करी है वो आप रिवाइज करें, क्योंकि वैसे तो जीएसटी एक नया टॉपिक है, लेकिन इस एंट्री को हम नेक्स्ट में कराएंगे, तो आप इसको रिवाइज जरूर करें. ऐसा ना कि आपने पढ़ा और छोड़ दिया. तो इसको प्लीज रिवाइज करें. सारी एंट्रीज जो आपको विक्की सर ने सिखाई है उसको इवन 2 बार रिवाइज करें. इससे आपको पूरी बुक समझ में आ जाएगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है. तो इसके साथ ही मैम मीटिंग ओवर कर सकते हैं. वोट ऑफ थैंक्स.
ओके, वोट ऑफ थैंक्स, सॉरी मैम। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हुकुम राज को इनवाइट करना चाहूंगी। हुकुम राज, ओवर टू यू। Okay, ma'am. Good evening, dear friend. On the behalf of Saksam Roja Society, I am Hukum Raj. Extend my heartful gratitude. A special thanks to Mr. Vicky Gautam, a BCom graduate from Motilal Nehru College, Delhi University, and financial profession currently working as a senior accountant at Kesar, India. His diverse experience in auditing, financing, reporting, and corporate accounting add a great value to today's session on tally, asset and liability. We truly appreciate his time and effort in sharing his knowledge with us. To our students, thank you for your energy and active participation. Your engagement made the session more meaningful, and we look forward to seeing the same spirit in our future program. A special thanks to Ms. Dipti Chawla ma'am, a General Secretary of Saksam Bharati, and esteemed member of our Rozgar Society for joining us today and for her invaluable insight and support during the class. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. Thank you. Over to you, Sanju. Good night. थैंक यू हुकुम राज। गुड नाइट। ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम यहीं ओवर करते हैं। तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम पर। और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करो, टाइम से ज्वाइन करो। और जो हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारी यूट्यूब चैनल है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, आप उस पर ये वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तो आज मैं जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, फॉलो कर रहे होंगे, और लोगों को भी इनकरेज करो। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं और कल संजू जी की क्लास होगी आपके साथ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट Good night, everyone.